I am magician A. Shorkar from Magic World, and I am giving thanks to Piggyright, who are organizing this online magic show and magic teaching workshop. And today I will teach you some different kinds of magics, and at first I will perform before you some different magic items. और मैजिक के बारे में जिनको जानना है वो पिगीराइट से कांटेक्ट कर सकते हैं. हम लोग का क्लासेस हो रहा है पिगीराइट में, तो पिगीराइट में इंडिविजुअल क्लासेस भी हो रहा है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और ग्रुप क्लासेस भी हो रहा है. मैं मैजिशियन ए सरकार मेरा टीचिंग कोर्स चल रहा है पिगीराइट में, तो आप लोग उनका जो लिंक है, वेबसाइट है, फेसबुक पेज है और कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं. मैजिक शो पहले हम करेंगे, उसके बाद मैजिक सिखाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ. जैसे कि मैजिक जो आज हम लोग सीखेंगे, आज एकदम बेसिक मैजिक आपके सामने हम लोग पेश करेंगे. तो इसमें क्या होगा, इसमें मैजिक 4 टाइप का होता है. यानी वर्ल्ड में जितना भी मैजिक होता है ये 4 टाइप का होता है. एक तो होता है क्लोजअप मैजिक. क्लोजअप मतलब जो आप एकदम नजदीक से दिखाएंगे. द आइटम्स व्हिच यू परफॉर्म क्लोज टू द ऑडियंस. सपोज आपका घर में कोई आया, आपने वहां पे कुछ मैजिक दिखाया, कॉइन से, कार्ड से, नोट से, या फिर आपका स्कूल में जाके आपने परफॉर्म किया, स्कूल में, क्लास में, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजअप मैजिक, जो आप एकदम नजदीक से, एकदम आमने सामने से आप दिखा सकते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ मैजिक, दैट इज conjuring magic. Conjuring magic means which you can perform from 6 to 8 feet distance. Suppose you are performing in your school annual program, or you are performing a birthday show of your friend, or you are performing in your locality, any program you perform. In that case, you have to perform conjuring magic, जहाँ पे distance थोड़ा ज्यादा होगा. यानी मान लीजिए 500 to 600 पब्लिक है, इससे भी ज्यादा है, तो दूर से वो दिखाई नहीं देगा. छोटा आइटम अगर आप परफॉर्म करेंगे, इफ यू परफॉर्म क्लोजअप मैजिक, देन इट विल नॉट बी विजिबल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. देन यू हैव टू परफॉर्म conjuring magic. Conjuring means the items which looks like little bit big, and that is visible from a long distance. That's our conjuring magic. So close up conjuring, this is the 2 parts. And the third one is semi illusion. Semi illusion is which are little bit big than the conjuring magic. सपोज मैजिशियन जो करते हैं, बर्ड अपियर करते हैं, कबूतर, पिजियन, या फिर दे अपियर रैबिट, दे फ्लोट अ पर्सन ऑन द ईयर. ठीक है, तो सेमी इल्यूशन क्या है? ये जो बर्ड, रैबिट हम लोग अपियर करते हैं, या फिर वो एक तलवार लेके हमने मुंह के अंदर से डाल दिया, वो सॉलोइंग अ शॉट. ओके, तो दिस टाइप ऑफ मैजिक आर सेमी इल्यूशन व्हिच आर लिटिल बिट बिग देन द conjuring, but not so much big, but little big than the conjuring magic. And the last part, that is illusion. Illusion means which magicians we have performed in different stage shows, like cutting a man in 2 halves, like floating a lady in the mid-air. This type of items actually illusions. So these are the 4 type of items in magic. Close-up magic, the magician who perform close-up magic more, they are called the street magician, like David Blaine, like Chris Angel, like Dynamo, who perform in X and Channel, History Channel, and different channels. And the conjuring magic, the magicians who perform conjuring magic most, they are called the conjurer. The conjurer is an American term. It is an American magician. They are actually named as conjurer. And the third part, that is semi-illusion. And the final last part, which you perform in big stages, that is illusion. And illusion and semi-illusion, these magics are performed in big stages. And these magicians, they are called actually illusionists, who perform illusion and semi-illusion more. So today we are starting our magic class session. Okay, and at first we are starting our magic class. हम लोग का जो कोर्स होगा, आज तो वर्कशॉप है, इसमें मैं कुछ मैजिक सिखाऊंगा जो आप कर पाएंगे आसानी से घर में. और मैं इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बोलूंगा, तो आपको समझ में आएगा. जहां पे समझ में नहीं आएगा मैं आपको रिपीट करूंगा, आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो मैं रिपीट करूंगा वो चीज आपको. ओके, और पहले हम लोग आज शो करेंगे, उसके बाद मैजिक हम सिखाएंगे. और क्लासेस में जो होगा, पिगीराइट ने जो क्लास ऑर्गेनाइज किए हैं उसका लिंक दिया हुआ है. क्लासेस में जो होगा उसमें बहुत सारा क्लोजअप मैजिक भी है, जो आप तुरंत आसानी से आप घर में कर पाएंगे. यू कैन इजीली डू इट एट योर होम, एनी प्लेस, आप दिखा पाएंगे उसको. तो ऐसा मैजिक भी क्लास में होगा. और कंजूरिंग मैजिक which you can perform at your friend's birthday, or which you can perform in different shows, वो भी आप कर पाएंगे. क्लोजअप मैजिक का एक छोटा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ. सपोज देखिए, दिस इज अ डॉलर. ओके,
कोई भी करेंसी नोट आप ले लीजिए, ऐसे कोई करेंसी नोट आप ले लीजिए। इसको देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ हाथ में मेरा, देखिए दिस इज फ्लोटिंग। तो ऐसा कोई भी चीज को आप हवा में फ्लोट कर सकते हैं। पब्लिक में से एक नोट आपने ले लिया, ओके, और उसको लेके आपने फ्लोट कर दिया। तो दिस इज क्लोज अप व्हिच यू कैन डू एट योर होम एट एनी प्लेसेस। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मैजिक ये भी पिगी राइट का जो क्लास होगा उसमें होगा, और उसके साथ जो स्टेज मैजिक है जो अभी आपके सामने हम दिखाने जाएंगे वो भी होगा। सो दिस इज क्लोज अप एंड कंजूरिंग, ये दो चीज आज होगा आपके सामने। तो चलिए आज मैजिक शो हम शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं जो वर्चुअल बैकग्राउंड है मेरा बैकग्राउंड में, इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे हर चीज। तो चलिए इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं और शुरू करते हैं आज का मैजिक। ये मैजिक एकदम छोटा था, तो मेरा मम्मी रोज मुझे एक ग्लास करके ऐसे दूध पीने के लिए देता था। सो दिस इज 1 ग्लास ऑफ मिल्क, और इसके साथ देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर है। दूध पीना मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं करता था दूध को लेके मैं क्या करता था, देखिए आई एम पोरिंग द मिल्क हियर, ओके, आई एम शफलिंग द मिल्क। देखिए मिल्क को मैंने शफल कर लिया, और मैं थोड़ा जादू करता हूँ अभी। देखिए आई एम डूइंग सम मैजिक, गिली गिली होकस फोकस एब्राकाडाब्रा। और इसको करने के बाद देखिए व्हेन आई एम डूइंग सम मैजिक, नाउ आई एम मेकिंग द मिल्क, वाओ सो मच कलर। और आज का प्रोग्राम का शुरुआत में मैं मेरा जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग, उसको निकल के मैं शुरू करना चाहता हूं। तो देखिए इंडियन फ्लैग मैंने निकाला, और मैं मेरा देश को श्रद्धा निवेदन करना चाहता हूं, और उसके साथ वी आर फीलिंग प्राउड एज एन इंडियन। तो देखिए फ्लैग निकल के मैंने शुरू किया, जय हिंद, थैंक यू। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट मैच। हाँ, मैं जब छोटा था तो मुझे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना एकदम नहीं आता था। तो मेरा मम्मी मुझे ड्राइंग क्लास में मुझे एडमिशन कर दिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू ड्राइंग प्रॉपर्ली। तो मेरा जो पहला कंपटीशन था, व्हेन आई विजिटेड माय फर्स्ट कंपटीशन, मैं ऐसा एक कलर बुक लेके गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस इज द बुक, देखिए एकदम खाली है। आई एम शोइंग फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स। दिस इज एन एम्प्टी बुक। तो देखिए ये बुक लेके मैं गया था, मेरा पहला जो कंपटीशन था एकदम बचपन में, मैं ऐसा एक बुक लेके गया था, एंड आई एम टेकिंग अ स्केच पेन, अ नॉर्मल स्केच पेन, वो मैं लेके गया था, ओके, एंड आई एम डूइंग सम ड्राइंग ऑन द ड्राइंग बुक विद द हेल्प ऑफ मैजिक। देखिए मैं कुछ ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग को लग रहा है कि मैं झूठ मूठ ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सचमुच यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, और मैं ड्राइंग कैसे हो रहा है आपके सामने मैं दिखाऊंगा, ओके। सो नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय ड्राइंग, एंड इन दैट कंपटीशन आई एम सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। सबसे ज्यादा ड्राइंग मैंने किया उसमें सबसे कम समय में। सो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा ड्राइंग करके मैंने फर्स्ट आए थे। मैंने क्या क्या ड्राइंग किए थे आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए रेडी, 1 2 एंड 3। देखिए हर पेज में देखिए कितना ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ गया जो मैंने स्केच पेन से किया। देखिए डिफरेंट पिक्चर्स। सो ऐसे मैंने वहां पे ड्राइंग किया, और उस कंपटीशन में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा ड्राइंग करके आई एम सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन। व्हेन आई विजिटेड द नेक्स्ट कंपटीशन, तो वहां पे सिर्फ ड्राइंग करने से नहीं चलेगा, वहां पे आपको कलर भी करना पड़ता है। ऐसा कंपटीशन है, थोड़ा बड़ा कंपटीशन है। तो मैंने सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा पिक्चर को मैंने कलर करके वहां पे भी फर्स्ट आया। तो कैसे कलर किया, क्या क्या कलर किया, वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। तो मैंने वहां पे जब किया, मेरा जो कलर रखने का जो प्लेट है वो मैंने लेके किया, ओके, ये पैलेट लेके किया, और जो ब्रश है ये ब्रश मैंने लेके किया। लेकिन जल्दी जाने के लिए मैंने कलर ले जाना भूल गया। तो वहां पे जाके लगा, अरे मैंने तो कलर ही नहीं लेके आया, तो मैं कैसे ड्राइंग करूंगा, कैसे पेंट करूंगा पिक्चर। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं तो मैजिशियन हूं, तो कलर मैं नहीं लेके आया तो क्या हुआ, मैं जादू से कलर लाने की कोशिश करूंगा। सो उस टाइम में मेरा एक छोटा सा रुमाल था, आई हैव अ स्मॉल हैंकी एट दैट टाइम, ठीक है, मैं बहुत छोटा था, क्लास उसमें मैं क्लास 4-5 स्टैंडर्ड का था। तो देखिए ऐसा एक छोटा सा रुमाल था मेरे सामने, तो उसको लेके जो प्लेट है उसको मैंने कवर कर दिया, ऐसे कवर कर दिया। और मेरा जो दोस्त था
वो डिफरेंट कलर का ड्रेसेस पहना हुआ था, तो मैंने क्या किया, उनका ड्रेस से थोड़ा कलर ले लिया। सपोज कोई रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है तो वहां से मैंने ले लिया रेड, कोई ग्रीन का पहना हुआ है तो ले लिया ग्रीन। सपोज दिस इज ब्लू, मैंने ऐसा ब्लू कलर ले लिया, एंड दिस इज येलो, नाउ आई एम टेकिंग द येलो, एंड दैट इज ब्राउन, नाउ आई एम टेकिंग द ब्राउन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर मैंने ले लिया, और मैंने फिर जादू किया, बोला गिली गिली एब्राकाडाब्रा होकस फोकस शू, बोलने के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट कलर सब आ जाएगा। देखो रेडी, 1 2 एंड 3, वाओ, देखो कितना कलर आ गया यहाँ पे। और मैंने ड्राइंग जो किया उसको अभी मैंने कलर किया। कैसे कलर किया आपके सामने मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो दिस इज द ड्राइंग बुक व्हिच आई ऑलरेडी शो यू। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सब है, तो अभी इस पिक्चर्स को हमको जल्दी कलर करना पड़ेगा। तो कंपटीशन खत्म होने वाला था, बहुत कम टाइम था, तो मैंने एक एक करके कलर लिया और कैसे कलर किया आपको दिखाता हूँ। एट फर्स्ट आई एम टेकिंग द ब्लू, तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर दिया, देखो ब्लू। नाउ आई एम टेकिंग द चॉकलेट कलर, ओके, नाउ आई एम पुटिंग द चॉकलेट कलर ऑन द बुक, ओके। नाउ आई एम टेकिंग द स्काई कलर, स्काई, okay, and both side I am putting the sky. Now I am taking the red, my favorite color, red. Now I am putting the color on the book, on the pictures invisibly. Now that is green. Now I am putting the green here. And the last one, the yellow, yellow, okay. Now I am taking the yellow and all the colors I put it on the book. अभी देखेंगे कि बुक में जो मैंने कलर किया वो सही से आया कि नहीं आया, तो उसके लिए फिर मैजिक करेंगे, बोलेंगे गिली गिली होकस फोकस एब्राकाडाब्रा छू, बोलने के साथ साथ क्या होगा, देखो रेडी 1 2 3, देखो जो पिक्चर था ऑल बिकम्स कलरफुल, देखो कितना सुंदर सुंदर कलर हो गया, देखो हर पिक्चर कलरफुल हो गया ऐसे। और एक चीज तो मैंने बताना भूल ही गया आप लोग को, मैं बचपन में थोड़ा कंजूस था, आई वॉज वेरी माइजर इन माई चाइल्डहुड। मैंने क्या किया, एक बुक को लेके सारा जिंदगी मैंने गुजर दिया। कैसे, हर कंपटीशन के बाद मैं जब घर वापस आता तो मेरा जो इरेजर है, जो रबर है, इसको लेके मैंने पूरा पिक्चर्स को देखिए जादू से मैंने इरेज करने की कोशिश करता हूं, देखिए एंड जादू से सब पिक्चर इरेज हो जाता था ताकि मैं नेक्स्ट कंपटीशन में भी उसको यूज कर सकूं। देखो जादू से हम इरेज करने की कोशिश करेंगे, रेडी 1 2 and 3, all are erased. देखो all are erased. I am showing from the both sides. All are erased from all the corners, from the top, from the low position, all the sides. All pictures are erased. So this is the magic of drawing. मैं बचपन में ऐसा मैजिक करता था। अभी जो मैजिक आपके सामने मैं दिखाऊंगा, तो कार्ड का मैजिक यानी ताश का मैजिक हर कोई जादूगर करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग है, डिफरेंट किड्स से, जो बहुत छोटा छोटा बच्चा भी है जो यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो सब लोग को कार्ड पता नहीं है कि कौन सा कार्ड क्या है। तो मैं अगर कोई कार्ड का मैजिक दिखाऊंगा तो आप लोग को, सब लोग को पता नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, काउंटिंग के ऊपर में मैजिक दिखाऊंगा, कार्ड से ही दिखाऊंगा लेकिन काउंटिंग के ऊपर में। काउंटिंग तो आप सबको पता है, 1 2 3 काउंटिंग तो सबको आता है। तो चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू अ कार्ड मैजिक। जब मैं एकदम छोटा था, मेरा जब 8 9 साल ऐसे उम्र था, मेरा छोटा छोटा हाथ था, उसमें एक साथ इतना कार्ड मैं हाथ में पकड़ नहीं पाता था। तो मेरा जो मैजिशियन गुरु था, मुझे बोला कि अभिषेक, मेरा पूरा नाम है अभिषेक सरकार, शॉर्ट में मैजिक नेम है ए सरकार, तो बोला था कि अभिषेक आप सिर्फ 5-6 कार्ड ले लीजिए, यू टेक सम ओनली 5 to 6 कार्ड्स एंड डू द मैजिक। तो मैंने 5-6 कार्ड मैंने ले लेता और उससे मैं मैजिक करता। क्या मैजिक करता आपके सामने दिखाऊंगा, दिस इज द मैजिक ऑफ कार्ड्स। तो चलिए, नेक्स्ट जो मैजिक आपके सामने दिखाऊंगा, दिस इज कार्ड मैजिक, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया। So here we have 1 pack of cards. तो मैं बचपन में ऐसा एक नॉर्मल पैकेट लेके मैं प्रैक्टिस करता था मैजिक। तो आज भी वो मैजिक आपके सामने दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मैं कुछ कार्ड ले लेता हूँ, बॉक्स को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं कुछ कार्ड ले लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 एंड 5, सिर्फ 5 कार्ड मैंने ले लिया, बाकी का सारा कार्ड मैंने यहाँ पे टेबल में रख दिया। So I choose only 5 cards here. So see, 1 1 2, this is number 3, this is number 4, and the last one, this is number 5. Okay,
तो 5 कार्ड मैंने ले लिया, लेकिन इतना छोटा हाथ था मेरा, इतना छोटा पम्प था, मेरा फिंगर था, कि मैं प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ से गलती से एक कार्ड गिर गया, दूसरा कार्ड भी मेरे हाथ से ऐसे गलती से गिर गया, और तीसरा वाला कार्ड भी मेरे हाथ से गलती से गिर गया। तो 3 कार्ड गिर गया। तो 5 में से अगर 3 चला जाएगा, अगर हम 5 से 3 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 2 रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन मैंने जब हाथ का कार्ड को गिना, मैंने देखा कि मेरे हाथ में 1 2 3 4 और 5 कार्ड ही है। तो मैंने चौंक गया, अरे भाई ये कैसे हुआ? मैंने 3 कार्ड यहाँ पे गिरा दिया, फिर भी कैसे यहाँ पे 5 कार्ड हुआ? तो मैं दौड़ के मेरा मास्टर जी के पास, मेरा गुरु के पास चला गया। उनको जाके बोला कि सर देखिए, मेरे पास 5 कार्ड था। अच्छे से सुनिए मेरी बात। नंबर 1, आई हैव 5 कार्ड्स, 2 3 4 एंड 5। तो अच्छे से आप लोग भी देखिए, यहाँ पे अभी 97 पार्टिसिपेंट्स है। आप लोग भी देखिए, मैं यहाँ से गिन गिन के निकलता हूं। देखिए, 1 रख दिया, ये दूसरा मैंने रख दिया, एंड दिस इज नंबर 3, ये भी मैंने रख दिया। 3 मैंने फेंक दिया सर। तो मेरे हाथ में, मैं फिर देखा कि 1 2, अरे बाबा, 3 4 5, हाउ इट इज डन? तीनों कार्ड मैंने खुद गिराया, उसके बाद भी फिर मेरे हाथ में 5 कार्ड ही है। तो गुरुजी ने मुझे बोला, सर ने मुझे बोला कि आपका हाथ में अभिषेक कार्ड कभी भी खत्म नहीं होगा। आप मैजिशियन हैं, आप जब भी चाहेंगे कार्ड्स आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत मजा आ गया, अरे भाई मैं कार्ड तैयार कर सकता हूँ, ओके वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, मेरा स्कूल में जो एनुअल प्रोग्राम था, मेरा स्कूल का एनुअल प्रोग्राम में मैंने किया, वहां पे मैंने दिखाया सबको, देखो मेरा मैजिक। तो यहाँ पे 1 2, आई हैव 5 कार्ड्स, 3 4 एंड 5, और 5 कार्ड से मैंने फिर आपके सामने देखो, मैंने दिखा के तीनों भी खुला हुआ स्टेज था, 3 साइड ओपन स्टेज था। तो 1 कार्ड गिरा दिया, अभी यहाँ पे दिखा के दूसरा गिरा दिया, अभी यहाँ पे दिखा के तीसरा गिरा दिया, अभी फिर मैंने सबको दिखाया कि देखिए मेरे पास 1 2 3 4 और 5। तो मेरा मैथ का जो मास्टर है, जो टीचर है, बोला अभिषेक ये तो 2 होना चाहिए 5 से गिर जाने के बाद, ये 5 कैसे रहा? मैंने बोला सर वो मैथमेटिक्स में 2 होता है, मैजिक में क्या होता है, वो 5 ही रहता है जाने के बाद। तो उसके बाद मेरा एरिया में दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में मुझे परफॉर्म करने के लिए बोला। मैं फिर दिखाया कि मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 कार्ड मेरे पास है। ओके, मैं फिर यहां से गिरा देता हूं, देखो नंबर 1 गिरा दिया, नंबर 2 गिरा दिया, नंबर 3 गिरा दिया, फिर देखो मेरे हाथ में 1 2 3 4 एंड 5, आई हैव 5 कार्ड्स अगेन। तो इतना बार दिखाते दिखाते मैं अभी बड़ा हो गया। तो आज पिगी राइट का शो के लिए जितना भी बच्चा है, आई एम गिविंग थैंक्स टू ऑल द चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स टू पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल मैजिक शो एंड मैजिक वर्कशॉप। और आप लोग के लिए मैं मैजिशियन ए सरकार, अभिषेक सरकार, और एक बार सबके लिए मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए अच्छे से, ध्यान से देखिए, मेरे पास 1, मेरे पास 2, मेरे पास 3, मेरे पास 4 और 5 कार्ड से। एंड मैं यहाँ से 3 कार्ड को निकाल देता हूँ, देखो 1 2 और 3, और फिर भी मेरे पास देखो 1 2 3 4 और 5 ही बचा रहेगा। ऐसा चलता ही रहेगा। तो दूसरा मैजिक भी तो है, वो भी तो देखना है। तो इतना बार इस कार्ड का मैजिक करेंगे तो कैसे होगा? तो चलो अभी क्या करते हैं, इस कार्ड को हम ले लेते। इतना सारा कार्ड हो गया, ये कहाँ पे मैं रखूं? तो ये कार्ड को लेके हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। कितना कार्ड हो गया, एक हाथ से पकड़ नहीं जाता है। तो इस कार्ड को हम ले लेते हैं। मैं इस कार्ड को ये टेबल में, इसमें यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अभी इस कार्ड को लेके मैं कुछ मैजिक करता हूँ। इस कार्ड को लेके मैं कुछ मैजिक करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या मैजिक है, देखो गिली गिली होकस फोकस एब्राकाडाब्रा शू, वाओ, इट टर्न्स इनटू अ बिग कैसल। देखो कितना बड़ा कैसल हो गया। ऐसे ही हम हर इंडियन, हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे, जितना भी दोस्त है एक साथ मिलके रहेंगे, तब इंडिया एक साथ खड़ा हो पाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम लोग को एक साथ ऐसे कार्ड की तरह, जो कार्ड है, एक साथ रह के रहना चाहिए सब लोग। थैंक यू, दिस इज द कार्ड मैजिक। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड नेक्स्ट मैजिक। ओके, यस, नेक्स्ट जो मैजिक आपके सामने दिखाएंगे, ये ट्रैफिक सिग्नल के तरह है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर में तीनों ट्रैफिक सिग्नल, रेड येलो ग्रीन, 3 चीज है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 ठो बॉल है। हियर आर 3 बॉल्स, रेड येलो एंड ग्रीन। सो ये 3 बॉल को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ।
तीन बॉल को मैंने रख दिया। ये तीन बॉल मेरे पास है, देखिए, ठीक है। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर के आर पार से मैं इस बॉल को निकल के दिखा दिया। तो चलिए अभी मैजिक हम शुरू करेंगे। तो मैंने सिलेंडर को यहां से कवर किया, ओके, आई एम कवरिंग द सिलेंडर। सबसे नीचे क्या है, ग्रीन, यानी हम लोग रास्ता में जब जाते हैं ये ग्रीन सिग्नल मिलने से हम जा पाते हैं, तो ग्रीन, इसको मैंने डाल दिया। तो बच्चा लोग को ये जानना चाहिए सब लोग को, येलो सिग्नल मतलब हम सावधान हो जाते हैं कि अभी रुकना है, येलो। और रेड मतलब हम लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं और रुक जाते हैं, सो दैट इज रेड। ये आप लोग को मालूम है, जिन लोग को नहीं मालूम है देख लीजिए। तो तीन मैंने रखा, तो सबसे नीचे मैंने रखा ग्रीन, बीच में मैंने रखा येलो, इन द मिडिल आई पुट येलो एट द टॉप आई पुट द रेड वन। नाउ क्या हुआ, ये रेड जो है ये बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत शरारत करते हैं। तो मैंने इसको जब उठाया, मैंने देखा अरे बाबा ये कैसे हुआ, रेड को मैंने रखा था ऊपर, ये चला गया नीचे, येलो बीच में था, ग्रीन नीचे था, कैसे हुआ। तो मैंने फिर करूंगा, मैं इसको फिर करूंगा कि बात देखो, मैं इसको फिर कवर कर देता हूं और सबसे नीचे में ग्रीन है, मैं ग्रीन को रखता हूं, उसके बाद येलो है, येलो के रखता हूं, उसके बाद रेड है, रेड को रखता हूं। अब सही से मैंने रखा, अभी उठाया, अरे फिर से रेड नीचे आ गया, कैसे हुआ। तो चलो रेड को हम अभी अलग रखते हैं, रेड को हम लेंगे ही नहीं, रेड डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, येलो को लूंगा और ग्रीन और येलो को रखूंगा जैसे यहाँ पे है, और इसको कवर कर दूंगा। और रेड को, मेरे पास यहाँ पे एक बैग है, इस बैग के अंदर मैंने रेड को रखूंगा, देखो एकदम खाली बैग है, इसके अंदर मैंने रेड को रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है ग्रीन एंड येलो, ये दो बॉल यहाँ पे है। और रेड कहाँ पे है, रेड है मेरे पास यहाँ पे इस बैग के अंदर, देखो मेरे पास रेड है। अभी मैंने रेड को यहाँ पे डाल दिया। तो ये रेड बॉल है, मैजिशियन, ये बहुत शरारत करते हैं, एक मैजिशियन है। तो ये यहाँ पे है, लेकिन ये क्या करेगा, वहां पे फिर चले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए रेडी 1 2 एंड गो। तो देखिए रेड बॉल यहां से बिल्कुल देखिए गायब हो गया, यहाँ पे और नहीं है रेड बॉल। तो रेड बॉल कहाँ गया, देखते कि वहां पे गया कि नहीं गया। रेडी 1 2 एंड 3, देखो रेड बॉल यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो रेड बॉल यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन येलो रेड तीनों बॉल यहाँ पे चला आएगा। थैंक यू, दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। तो इसके बाद नेक्स्ट मैजिक आपके सामने दिखाते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो मैजिक दिखाऊंगा, 2020 साल में कोरोना वायरस हिट किया इंडिया में और सारा वर्ल्ड में, और सब लोग, हम लोग ऐसे घर में अभी बंद है, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इट इज कोरोना वायरस को अगर जादू से गायब किया जाएगा तो कैसे हो। देखो कोरोना वायरस लिखा हुआ है और मेरे पास यहाँ पे 1 और 2 ऐसे 2 बाउल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जला देता हूँ, कोरोना को हम खत्म कर देते, जला देते। देखो नाउ आई एम बर्निंग द पेपर कोरोना वायरस। देखो एकदम, देखो जल रहा है कोरोना, देखो बहुत सारा आग हो गई। इसको बंद करके अभी थोड़ा मैजिक करके, बंद करके थोड़ा मैजिक करते। क्या मैजिक करेंगे, गिली गिली होकस फोकस एब्राकडाब्रा छू बताने के साथ साथ देखो क्या होगा। कोरोना वायरस को हमने यहाँ पे जला दिया, अभी दुनिया को हम शांत करने वाले हैं, सुंदर करने वाले हैं, कोरोना से मुक्त करने वाले हैं। मैजिक में अगर ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा। देखो रेडी 1 2 एंड 3, वाओ, इट टर्न्स इनटू अ बिग फ्लावर। देखो कितना बड़ा एक फ्लावर हो गया, कोरोना वायरस गायब होके देखो कितना बड़ा फूल आ गया। और सिर्फ फूल ही नहीं, हम लोग का जिंदगी जैसे पहले स्मूथ चल रहा था, ऐसा स्मूथ हम लोग का जिंदगी चलना चाहिए। तो मैं एक फाउंटेन, एक कलरफुल फाउंटेन लाने की कोशिश करूंगा, जैसे हम लोग का जिंदगी आगे जा रहा था इस फाउंटेन की तरह। रेडी 1 2 एंड 3, वाओ, स्टॉप। तो ऐसे ये फाउंटेन की तरह देखिए हम लोग का जिंदगी जैसे कलरफुल होगा तो बहुत अच्छा लगेगा सब लोग को। और कोरोना से लड़ने के लिए क्या चाहिए, जब भी बच्चा लोग, आप सब लोग बाहर निकलेंगे तो मास्क यूज कीजिए, सब लोग ऐसे मास्क यूज कीजिए। आप लोग को पता है, आप लोग यूज कर रहे हैं, फिर भी जिन लोग नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। और आप फ्रीक्वेंटली अगर बाहर जाएंगे तो सैनिटाइजर यूज कीजिए, कोई भी सैनिटाइजर, और घर में आके साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिए, ठीक है। तब जाके कोरोना से हम फाइट कर पाएंगे और कोरोना गायब होकर हम लोग का जो वर्ल्ड है ये बहुत खूबसूरत ऐसा पेपर की तरह, फ्लावर की तरह बन जाए। थैंक यू, दिस इज द मैजिक ऑफ vanishing coronavirus. Now we are coming to the next magic.
नेक्स्ट मैजिक आपके सामने पेश करते चलिए। हाँ, नेक्स्ट जो मैजिक आपके सामने पेश करेंगे, इसके लिए एक बड़ा सा टेबल मैंने लेके आया आपके सामने। तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स से एक मैजिक आपके सामने हम दिखाएंगे। ये बॉक्स को पहले मैं दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर में क्या है, देखो एकदम खाली है, आपको दिख रहा है। दोनों तरफ मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ, एकदम एक ब्लैंक बॉक्स है, आप लोग को दिख रहा है। अभी कोई भी चीज अगर उससे हम थोड़ा मैजिक कर सकते तो अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा म्यूजिक के साथ ही मैजिक करूंगा, देखते रहो। पहला जो मैजिक आपके सामने हम टीच करेंगे, इसका नाम है पेंटलिज्म। जो पेन आप सबका घर में होता है, नॉर्मल जो पेन होता है, लिखने का कलम जो होता है, तो उसको लेके आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा मैजिक दिखा सकते हैं। ऐसा एक मैजिक मैं आज आपको सिखाऊंगा और आज ही आप कर पाएंगे ऐसा मैजिक। तो चलिए ये पेंटलिज्म मैजिक हम पहले शुरू करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कुछ पेन्स चाहिए। मैं पेन कुछ ले लेता हूँ। ये अच्छा रहेगा अगर थोड़ा कलरफुल पेन सब लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे मैं कुछ पेन्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। और ये मैजिक अब कैसे करेंगे, ये देखिए मेरे पास ऐसे मैंने एक दो पेपर ले लिया। सिर्फ एक पेपर लेने से ही होगा। पहले आप परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद किसी का मन में कोई अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे यू कैन आस्क मी, ओके। तो पहले नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू द परफॉर्मेंस, जे कैसे हम ये मैजिक करेंगे। ये नॉर्मल बॉल पेन्स है, दीज आर द नॉर्मल बॉल पेन्स। आप 5-6 रुपए में आपको ये नॉर्मल कोई भी मार्केट में मिल जाएगा, ओके। तो ऐसा देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का, जैसे कि ब्लू कलर का मैंने लिया, ग्रीन कलर का मैंने लिया, ऐसे कि ऑरेंज लिया मैंने, ऐसे कि मैंने देखिए यहाँ पे पिंक कलर का लिया, एंड दिस इज द येलो कलर। मैंने डिफरेंट ऐसा, ये पब्लिक से ले लीजिए। मानिए कि आपने किसी के घर में गया, वहां उनको बोलिए कि आपका घर में अगर कोई कलरफुल पेन होगा तो आप मुझे दीजिए। ये पब्लिक से आप पेन्स ले लीजिए और उनका ही पेन से एक मैजिक कीजिए। उनको एक पेपर मांगिए उससे उनसे, और उससे आप मैजिक कीजिए। तो क्या मैजिक करेंगे आपके सामने मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उनको बुला लेता हूँ। हाँ आशीष, आप यहाँ पे चले आओ, आप चेयर लेके चले आओ थोड़ा। हाँ बैठिए। तो मैं ऑडियंस में से मेरा एक स्टूडेंट है आशीष, उनको मैंने यहाँ पे बुला लिया। आज आशीष उड़ीसा से अभी कलकत्ता में है, वो यहाँ पे रह के मैजिक का क्लास कर रहे हैं। आशीष थोड़ा साइड में आ जाओ ताकि स्क्रीन में तुम्हें पब्लिक अच्छे से देख पाए। तो आप आशीष को भी देख पा रहे हैं और मुझे भी देख पा रहे हैं। ऐसे पोजीशन में मैं स्क्रीन को रखता हूँ, ओके। एंड टेबल को भी आप देख पा रहे हैं, ऐसे पोजीशन में मैं रखता हूँ थोड़ा, ओके।
तो कैसे आप ये मैजिक दिखाएंगे? ये थोड़ा मेंटलिज्म टाइप का मैजिक है। इसका नाम ही देखिए, पेंटलिज्म। यानी मेंटलिज्म क्या होता है? मैजिशियन बहुत सा टाइप का मैजिक करते हैं। जैसे मैंने डाइस निकाला, जैसे कार्ड मैंने प्रोड्यूस किया, दिस इज प्रोडक्शन टाइप मैजिक। जैसे कोरोना वायरस पेपर को मैंने वैनिश कर दिया, दिस इज टाइप वैनिशिंग टाइप ऑफ मैजिक। ऐसे ही एस्केप, किसी भी जगह में हमें ब्लॉक कर लिया, मैं वहां से निकल के चला आया, दिस इज एस्केप। ऐसे ही मेंटलिज्म, यानी पब्लिक का माइंड रीड करने की कोशिश करना। यानी आपने कोई कलर पसंद किया, आपने कोई नंबर पसंद किया, कोई कार्ड पसंद किया, अगर मैजिशियन आपके साथ रिलेट कर पाएगा, वो बता पाएगा करेक्ट से, सो दैट इज कॉल्ड मेंटलिज्म। तो ये इस तरह का एक मैजिक है जो आप घर में सीखने के बाद आज ही कर सकते हैं, तुरंत आज, विदाउट सो मच प्रैक्टिस। यू कैन डू दिस आइटम इजीली एट योर होम टुडे, दिस इज माय गारंटी। और इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, आपको कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, यू कैन डू इट इजीली एट योर होम राइट नाउ टुडे। तो पहले आप देखिए, पहले आप क्या करेंगे, आप पब्लिक को बोलेंगे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे आप लोग जो पेन मुझे दिया, ऐसा कुछ पेन मेरे पास है, एंड हियर वी हैव एम्प्टी पेपर। देखिए मेरे पास एक पेपर है। तो हम क्या करेंगे, अभी पेपर है, पेन है, ओके। तो अभी मैं आशीष को बोल रहा हूं कि आशीष, मैं दूसरा दिक में घूम जाता हूं, मैं आपके ओर नहीं देखूंगा, मैं दूसरा दिक घूम जाऊंगा, या फिर मैं दूसरा घर में चला जाता हूं, ऐसा भी हो सकता है। आप कोई भी एक कलर का, कोई भी एक कलर का पेन उठाइए, हो सकते है वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, कोई भी कलर, कोई भी कलर, और उससे आप पेपर में लिखिए आई लव मैजिक। सिर्फ यही आपको लिखना है, आई लव मैजिक, ये पेपर में लिखिए। और पेपर को 4 फोल्ड में भांज कर लीजिए, ताकि मुझे पता ना चले कि कौन सा कलर का राइटिंग यहाँ पे है, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, कौन सा कलर का। पेपर को भांज कर लीजिए और पेन का ढक्कन को बंद कर दीजिए, और दूसरे पेन के साथ उसको मिला लीजिए, ताकि मुझे पता ना चले कि कौन सा पेन से आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो दूसरे पेन के साथ उनको मिला लीजिए। तो मैं हो जाने के बाद आप मुझे बताना, तब मैं आपके ओर टर्न करूंगा और आपका आंखों में देख के मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा कलर का पेन से आपने लिखा। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आप किसी का आंखों में देख के कैसे बताएंगे, उसका माइंड रीड अप कैसे करेंगे, वही हम आपके सामने दिखाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आशीष को थोड़ा ऐसे स्क्रीन रखता हूँ कि ताकि आप लोग टेबल भी देख सके और हम लोग का फेस भी थोड़ा देख सके। ऐसे थोड़ा स्क्रीन रखता हूँ, और पेन यहाँ पे है, पेपर यहाँ पे। आशीष, आप कोई भी एक पेन, आपका पसंद का कोई भी एक पेन उठाना, उससे पेपर में आई लव मैजिक ये बात आप लिखना। पेपर को 4 फोल्ड में फोल्ड करना, पेन को बंद करके दूसरे के साथ मिला देना, ताकि मुझे पता ना चले। हो जाने के बाद आप जोर से बताना कि सर हो गया, तब मैं टर्न करूंगा। तो आप लोग भी देखिए ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन आशीष कर रहा है और मैं दूसरा दिक में टर्न करके रखता हूं। देखिए आशीष, आप हो जाने के बाद मुझे बताना। देखिए मेरा फेस इस दिक में है, मेरा आई इस दिक में है, और आशीष पीछे मेरा कर रहा है। क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन आशीष कोई भी पेन उठा रहा है, लिख रहा है उसका पसंद के कलर से, और कागज को फोल्ड कर रहा है, पेन को बंद करके दूसरे पेन के साथ वो मिला रहा है। हो जाने के बाद आशीष आप मुझे बताना कि हो गया, योर जॉब इज डन। आप लोग देखते रहिए आशीष क्या कर रहे हैं। आशीष, इज योर जॉब डन? यस सर, माय जॉब इज डन। आप पेन को बंद कर दिया, मिला दिया? यस सर, मिला दिया। कागज को अपने 4 भाग में भांज करके आपका हाथ में या फिर टेबल में आपने रखा? हाँ सर। सो मैं टर्न कर सकता हूँ? हाँ सर, आप टर्न। चलिए मैं टर्न कर लेता हूँ। नाउ आई एम टर्निंग। तो आप सब लोग देखें, यहाँ पे 107 पार्टिसिपेंट्स है, सब लोग आप देखें, लेकिन मैं नहीं देखा कि आशीष ने कौन सा कलर से किया। ठीक है, तो चलिए आशीष, मैं आपका हाथ दीजिए, थोड़ा हाथ फैले, मैं एक एक कलर का पेन आपके हाथ में टच करूंगा, आप मेरे आंखों में देखना। जब वो वाला पेन आएगा, आप मुझे आपका आंखों का जो आपका एक्सप्रेशन है वो नॉर्मल रखना, ताकि मुझे पता नहीं चला कि आपने थोड़ा हंस दिया, यू आर लफिंग, और आपने मुंह को थोड़ा गंभीर कर लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वो पेन से लिखा। तो आप एकदम आपका एक्सप्रेशन नॉर्मल रखिए। सो आर यू रेडी आशीष? यस सर। ओके, मैं एक एक कलर का पेन, ये पहले देखिए येलो कलर का पेन, मैं उसका हाथ में, हाँ मेरे आंखों में देखिए। ओके, नाउ देन देखिए मैं ये ऑरेंज कलर का पेन लेता हूं, देखते रहिए आंखों में। गुड, नाउ आई एम टेकिंग द पिंक कलर का पेन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द ब्लू कलर का पेन, देखते रहिए। नाउ आई एम टेकिंग द ग्रीन, देखिए ये देखते रहिए। ओके,
अभी आशीष ने मेरा आंखों में देखते रहा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आशीष ने कौन सा कलर का पेन से लिखा आपको बताने के लिए। मुझे लगता है कि आशीष जिस पेन से लिखा, इतना पेन से, जो पेन से आशीष लिखा, दैट इज ब्लू। आपने ब्लू से लिखा, यस और नो? ब्लू से लिखा। तो एग्जैक्ट हम बता देंगे। आप लोग को लग रहा है कि मैं अभी ऑनलाइन में कर रहा हूं, आप लोग सामने है नहीं, तो मैं गॉट अप करके कर रहा हूं, ऐसा लग सकता है आप लोग, लेकिन ये नहीं है। आप आज ही आपको मम्मी पापा को, घर वालों को दिखा सकते हैं ये मैजिक मैं सिखाऊंगा, एंड दिस इज माय गारंटी, आप आज कर पाएंगे तुरंत। नाउ आई एम कमिंग टू द सीक्रेट, हाउ दिस मैजिक आई एम डूइंग। आई एम कमिंग टू द सीक्रेट। देखो, सीक्रेट जानने के बाद क्या होता है, सब मैजिक ना बहुत सिंपल सा लगता है। जब मैं नहीं जानूंगा तो मुझे लगता है भाई कैसे किया, ये कैसे हुआ, आग देख के बता दिया ये लड़का। लेकिन when we are knowing the secret, then it become very much easy. ऐसे बॉल पेन सब ले लेना, ऐसे बॉल पेन सब ले लेना। You have to take the ball pens right now, okay? So ऐसे डिफरेंट कलर का ले लेना। सीक्रेट जो है, जब ये बॉल पेन में देखिए एक चीज कॉमन होता है, बॉल पेन में इसका कंपनी का नाम लिखा रहता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को कंपनी का नाम? देखिए ऐसे कंपनी का नाम। देखिए मैं दूसरा कलर से दिखाता हूं। देखिए कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या क्या करना है, आपको पेन का जो ढक्कन है, अच्छे से देखिए, नाउ आई एम कमिंग टू द सीक्रेट, ये कंपनी का नाम के बराबर रखना है। यानी यहां पे कंपनी का नाम, उसका बराबर ढक्कन, ये हर पेन में पहले से आपको सेट करके रखना है। यू हैव टू सेट ऑल द कवर्स ऑफ द पेन स्ट्रेट टू द राइटिंग। देखिए मैंने ढक्कन को स्ट्रेट टू द राइटिंग मैंने करके रखा। देखिए ये है ढक्कन, ये ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ढक्कन है। देखिए इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेट टू द राइटिंग रखा, स्ट्रेट टू द राइटिंग। ओके, ये हर पेन में मैंने किया। देखिए इसमें भी ये राइटिंग है, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेट करके रखता हूँ। देखिए ये पहले से आपको करना होगा। अगर 2 पेन मिलेगा, 3 पेन मिलेगा तो 3 पेन से ही, ठीक है। और आशीष ने जो पेन लिया वो क्या किया, मैं उस दिक में हूं, पब्लिक का सेंटीमेंट में क्या चलता है कि मैजिशियन को किसी भी तरह से पता नहीं चलना चाहिए, तो मैं जल्दी करके जल्दी बंद करके रख देता हूं। इफ यू आर चूजिंग द, आशीष इज चूजिंग द ब्लू वन, ओके, तो क्या किया, जल्दी में, इन हरी, आशीष ने ही क्लोजेस द कैप ऑफ द पेन। और ये देखिए ये ढक्कन, देखिए दिस जो ये जो कैप है, ये राइट अप से, राइटिंग से थोड़ा हट गया। देखिए दिस कैप पोजीशन इज इन द डिफरेंट पोजीशन, द राइटिंग यहाँ पे है और कैप का ढक्कन यहाँ पे है। तो व्हेन यू आर टेलिंग द पब्लिक टू ओपन योर हैंड एंड आई एम टचिंग द पेन ऑन योर हैंड एंड लुक एट माई आईज, ऐसे जब मैं देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम लुकिंग एट हियर एट फर्स्ट, और मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग कि ढक्कन इसके बराबर है कि नहीं है। जिसमें नहीं है उसी से पब्लिक लिखा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी मैजिक। यू हैव टू एडजस्ट ऑल द कैप्स ऑफ द पेन स्ट्रेट टू द राइटिंग एट फर्स्ट। ओके, सपोज आपने पब्लिक के घर में किया, पब्लिक का पेन है, तो आप कैसे सब पेन को देख देख के कैसे करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि देखिए पेन में काली है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूं, आई एम चेकिंग वेदर इट हैज द इंक और नॉट। ऐसा चेक करने के टाइम में आप ऐसे लिख के चेक करेंगे, लगाने के टाइम में आप इसको बंद करके यू हैव टू प्रिपेयर इट स्ट्रेट टू द कैप। देन यू आर टेकिंग द नेक्स्ट पेन। यस, और एक पेन है, देखिए इसको भी मैं चेक करता हूं, आई एम चेकिंग। When you are attaching the cap, you have to place the cap straight to the writing like that. So ऐसे आप चेक कर लीजिए पहले, अगर 3 पेन आपको मिलेगा तो। If you are getting 3 pens, at first you have to set the pens like that. Okay, I am checking whether here is ink or not. हाँ, ink is here. तो आपने ऐसे इंक चेक किया, और इंक चेक करने के टाइम में आपने इसको लगा दिया। Another more important thing which I want to say you. Suppose here are 5 pens. You have to complete all the pens. Suppose उन्होंने हाथ फैलाया, आप पहला वाला पेन में देखा कि नहीं है ढक्कन उसके बराबर, तो आपने बोला, you said that is your pen. Don't do that. Sometimes क्या होता है, ऑडियंस दोनों पेन से लिखते हैं। आपको चौंकाने के लिए, फुल करने के लिए ऑडियंस क्या कहते हैं, he is writing or she is writing with the help of 2 pens.
आपने बोल दिया ये वाला पेन, बाद में वो बोला कि मैं इससे भी लिखा हूं, इससे भी लिखा हूं, तो आप फेल हो गया. So in that case, you have to check all the pens thoroughly. You have to complete the 5 pens. If you are using the 5 pens, if you are using the 4 pens or 3 pens, you have to complete all the pens. Then you have to say the right answer. कौन सा पेन से उन्होंने लिखा है. So अगर वो हाथ को ऐसे फैलाएगा, एक एक करके हर पेन को मैं टच करूंगा. Don't see maximum time here. See to the audience side. Magic is an acting. So आपको एक्ट ठीक से करना है कि आपको देखिए मेरा आंखों में देखिए, मैंने एक बार यहां पे देखा लेकिन आंखों में मैंने ज्यादा देखा. You have to act like that properly. Act like that properly. Okay? Then you can do the magic very simply. So this is the magic of pentalism. You can perform it right now before you, to the audience, to your parents, to your friends. This is a very, very simple magic. So the first magic, which I already teach you, that's name is pentalism. And now the second magic, which I am going to teach you, this name is will the cards match. So now I'm going to present before you my next magic. That name is will the cards match. You can do it with any playing cards. You can do it any animal cards. You can do it any cartoon cards. Any cards you can do it. It's a very, very simple magic. Now I'm doing that magic. 1 minute. Here I have different animals. You're seeing tiger. This is the horse. This is camel. This is elephant, and the last one, that is chimpanzee. Okay, so there are 5 animals. Okay, who are raising the hand, I will make your question answer, no problem. After teaching this, I will make your answer. Okay, so I have 2 same sets. I have 2 same sets. You hold it high. 2 same sets. Chimpanzee, elephant, camel, horse, and tiger. Okay, 2 same sets. Okay, now I'm placing the sets on the table. In this magic, I want to participate the children here. So I want to participate. I am calling the names. So many children are here. Okay, so 1 minute. You just unmute your sound so that I can hear your comment. Kavika and Yes. Yes, sir, I can. Yes, sir. okay. D Radhika. Shika. D Radhika, are you getting my voice? Yes, yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. He's telling Chalo, us. हम शुरू करते हैं. Okay. Your part. I have 2 set of cards. These are animal cards. Okay. Kavika and D Radhika, are you seeing the cards? Are you seeing? Yes, sir. Yes, sir. मैं पहले कविका के पास आता हूँ. कविका, आप मुझे बताइए, ये 2 सेट मैं मेरा पोजीशंस थोड़ा लो कर लेता हूँ ताकि आप लोग मुझे. हाँ, तो कविका, मेरा हाथ 2 दिख में देखो. दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस क्लॉक आई एम वेयरिंग, दिस इज माय लेफ्ट हैंड. ओके, सो कविका तुम बताओ, ये 2 सेट देखो, 2 सेम एनिमल सेट है, सेम सीक्वेंस में है, आप देख सकते हैं. तो कविका, आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सा सेट को मैं उल्टा करके रखूं? Which one I face down? मेरा राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का? Right side. राइट हैंड का. ओके, मैं देखो इसको उल्टा करके रखता हूं. ओके, अभी डी राधिका जो है वो मुझे बताओ, मैं कौन सा दिख से शुरू करता हूं? ये दिख से शुरू करूंगा या फिर ये दिख से? Left, sir. So from left I am starting according to your comment. I am not forcing you. Which you tell, I will do. Okay. So मैं अभी ये मैजिक जो है, will the cards match? Now I am counting it. Will the cards match? Okay. So राधिका ने मुझे बताया कि लेफ्ट से शुरू करने के लिए. Are you sure राधिका, यहाँ से शुरू करूँ? Yes, sir. Okay. So मैं काउंट करता हूँ. W I L L मतलब will. अभी जो फ्रंट 2 कार्ड है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे सामने रखता हूँ, जो फ्रंट 2 कार्ड है. तो विल मैंने काउंट किया. अभी कविका बताओ, मैं फिर से कहां से शुरू करूं? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से? फ्रॉम व्हिच साइड आई विल स्टार्ट? Left side. लेफ्ट. अभी आता हूं दा में, दा. तो आप बीच में भी मुझे स्टॉप बोल सकते हैं. मानिए कि THE दा,
मैंने टी यहाँ से किया, एच वहां से किया, दा ई यहाँ से किया, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी आप मुझे शफल करने के लिए बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लेफ्ट आपने बोला, मैंने अभी दा काउंट करूंगा, टी, एच यहां से करना है या फिर यहां से करना है? Right hand. यहां से सेम, Right hand. राइट हैंड। एच, ई कहां से करना है? ई, Right. राइट, ई। तो दा हो गया। अभी मैंने फिर से दो कार्ड को अलग कर दिया, विल हो गया, दा हुआ। अभी आते हैं कार्ड्स पे। अभी राधिका बताओ कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम माई लेफ्ट और राइट? Left, sir. लेफ्ट। कार्ड्स, कार्ड का सी, सी लिया। ए भी यहां से करेंगे राधिका, ए, Yes. Right. A, sir. ए। आर कहां से करेंगे? आर यहां से या फिर वहां से? Right, sir. आर। डी कहां से करेंगे? डी यहां से। Left, sir. डी को लेफ्ट से करते हैं, चलो। और एस, लास्ट में एस कहां से करेंगे? Right. राइट। अच्छा, एस, कार्ड्स। सो विल द कार्ड्स हो गया। अभी आते हैं फाइनल लास्ट वर्ड में, दैट इज मैच। चलो मैच करते हैं। तो कहां से करेंगे कभी का? Right side. राइट और लेफ्ट? फ्रॉम व्हिच साइड? Right. राइट। एम, ए करेंगे यहां से, ए, टी करेंगे यहां से, Left. लेफ्ट। टी, सी करेंगे यहां से, सी। Yes. एच, एच कहां से करेंगे? Right. एच। अभी मैं फिर दो टॉप कार्ड को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपने जैसे जैसे बोला हमने ऐसे ऐसे किया। जब राइट बोला राइट, जब लेफ्ट बोला लेफ्ट। एक ही दिख से अगर बोलते तो एक ही दिख से करता। कुछ बोला यहाँ से, सी आर डी का सी यहाँ से, आर वहां से, ऐसा बोला तो आपने मुझे हौच-पौच कर दिया। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि किसके साथ क्या है। अभी देखेंगे जो शेर बचा हुआ है, जो टाइगर बचा हुआ है, उसके साथ कौन आते हैं? टाइग्रेस आता है कि नहीं? क्योंकि इसके साथ अगर शिंपांजी आएगा या फिर ऊंट आएगा, कैमल, तो खराब होगा। इसके साथ तो इसका ही बीबी आना चाहिए, इसका वाइफ आना चाहिए। सो आई एम टर्निंग नाउ, रेडी? अगर आ जाएगा तो आप मुझे रिस्पॉन्स करें। Yes, sir. 1, I'm ready. 2 and 3. Wow! Tiger and tigress, it is matched completely. टाइगर का तो मैच हो गया, टाइगर का तो शादी हो गया, सेटिंग हो गया। लेकिन एलिफेंट का क्या होगा? अब तेरा क्या होगा एलिफेंट? चलो Elephant. क्या होगा? हाँ, रेडी? टेरा टेरा, 1 2 and 3। एलिफेंट के साथ भी, एलिफेंट का देखो उनका बीबी आ गया है, तो इसका बहुत मजा है। तो चलो एलिफेंट का हो गया। अभी आएंगे कैमल। नाउ आई एम कमिंग टू द कैमल। ऊंट पे आएंगे। ऊंट के साथ भाई किसका मैच होगा? अगर शिंपांजी का होगा तो बहुत खराब लगेगा। कहाँ पे ऊंट है और कहाँ पे शिंपांजी? तो देखो, रेडी? 1 2 and 3. It is also matched. Camel, camel also matched. Now we are coming to the horse. Horse. horse में आएंगे, horse में आएंगे। horse के साथ क्या आता है? Horse हो जाएगा maybe. horse आ जाएगा। all are matched. And also the last one, that is chimpanzee, that is also matched. All are matched. All are matched. And, you are doing a beautiful job. Nice job. I am giving clap to you. Beautiful job. Thank you both of you. You are doing a beautiful job. Now आज आपको Thanks, sir. आज आपको सिखाएंगे ये आप कैसे करें। Suppose आपके पास ऐसा, if you have not the animal cards, so if you have the normal playing cards, तो क्या करेंगे? नॉर्मल जो प्लेइंग कार्ड्स आपका घर में है, तो 5 कार्ड ले लीजिए। सिर्फ यू हैव टू टेक ओनली 5 कार्ड्स एंड टियर द कार्ड्स। ठीक है, टियर द कार्ड। सो एक को उल्टा कीजिए, एक को सीधा कीजिए। ऐसे 5 कार्ड लेके भी आप घर में फ्री में कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉट द एनिमल्स कार्ड, देन व्हाट कैन डू? Then what you have to do, you have to take only 5 cards from your card packet and you have to tier. And you have to tell the audience which portion, which stack or which deck I want to place face up or face down. This you have to tell to the audience. Or if you are not interested to tier the card, then you can take the normal cards. Queen of hearts, queen of spades, queen of diamonds, king of hearts, king of spades, king of diamonds, and jokers. 5 cards. Okay? And it will also match.
In that way, you can also do that with normal cards freely at your home today right now. अभी मेरे पास एनिमल कार्ड है, ये आप प्रिंट कर सकते हैं. सपोज यू आर विजिटिंग एनी बॉलीवुड प्रोग्राम, एनी फिल्म फेस्टिवल और बॉलीवुड प्रोग्राम, तो आप उसमें ऐसे भी दिखा सकते हैं शाहरुख खान, गौरी खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनका वाइफ को आप दिखा सकते हैं या फिर उनका पार्टनर्स को आप दिखा सकते हैं, मैच कर जाएगा. ऐसे कोई भी चीज से कर सकते हैं. इफ यू आर परफॉर्मिंग इन ए कॉर्पोरेट शोज, तो उनका जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट से आप कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट विथ एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट यू वांट टू लाइक. ओके, तो चलिए आज आपके सामने सिखाते हैं कि कैसे करूंगा ये मैजिक, हम कैसे करेंगे. पहले मैं सजा लेता हूं. देखिए, 2 शिंपांजी, 2 हॉर्स, 2 कैमल. Now I am taking 2 elephants, and at last I am taking 2 tigers. So this is the setting. इसमें जैसे है शेर के बाद एलिफेंट है, हाथी है, कैमल है, इसमें भी ऐसे ही सेट कीजिए. Set the 2 slots properly. Okay, do you understand this point, everyone? I think you understand it. Automatically this magic will happen. This is an automatic method which we are spelling. Yes, आशीष थोड़ा साइड में आ जाओ, मैं उनको टाइप करके बता देता हूँ. इसका मैजिक जो वर्ड है, ये वर्ड के अंदर ही सब कुछ है. Now I am typing the word. You may write down it. 1 second. WILL, will, the cards, MATCH, match. This is the magic. This is the word which I am giving you at the chat box. Will the cards match? Will मतलब 4 अक्षर, 4. WILL, 4 digit. The means 3 letters, 3 digits. Okay, THE, the 3 letters. Cards, 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 that is 5 letters. Match, 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 that is also 5 letters. 4, 3, 5, 5. This is the secret. 4, 3, 5, 5. And you can tell, you can show, will the birds match? Birds also 5 letters. Will the heroes match? Film heroes. HEROS, heroes also 5. Or you can say, will the cards match? But you don't have to say, will the animals match? Animals are 6 letters. आप टीचिंग में आते हैं. मैंने मेरा टेबल में कैमरा करता हूं, देख लो. Now I am teaching. So public, if they say कि राइट साइड से करो, no problem. मैंने पहले दिखा दिया कि 2 साइड में क्या क्या है, ये मैंने पहले दिखा दिया. If public say that you are doing from the right side, तो राइट को उल्टा करो, no problem. Then बोला, they say कि do this magic from left, count from left. तो मैंने ऐसे काउंट किया, WIL, और ये वाला L यहां से बोला L. नो प्रॉब्लम, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन. ये विल काउंट करने के बाद इसको ध्यान से समझो. एक एक वर्ड हो जाने के बाद पहला जो टॉप कार्ड है, इस दोनों को सामने ऐसे रख दो. ओके, ऑटोमेटिकली देखो ये मैच करेगा ऑटोमेटिकली. मैंने इट इज अ सेल्फ वर्किंग मैजिक. ओके, उसके बाद आएंगे द. सपोज ही इज टेलिंग चूज फ्रॉम द, डू द मैजिक फ्रॉम राइट साइड. सो हमने किया THE, हमने यहां से किया द. फिर से टॉप 2 कार्ड है उसको अलग करके रखो. देखो ऑटोमेटिकली इट विल बी मैच्ड. देखो ये होगा ही होगा. अभी आते कार्ड CARDS, यहां से लिया S कार्ड्स. अभी 2 टॉप कार्ड लिया, देखो ऑटोमेटिकली इट विल मैच. ये एकदम सेल्फ वर्किंग है, ये आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होगा. अभी आते मैच, MATCH, मैच रखा. अभी देखो सब कुछ मिल जाएगा. देखो मैच्ड. हाथी की भी मिल गया, दिस इज ऑल्सो मैच. कैमल भी मैच, टाइगर भी मैच, और हॉर्स भी मैच. All are match. So this is the secret of will the cards match. So have you any problem to understand this magic? Now 2 magics I have already completed this session. The first one, that is pentalism, and the second one, that is will the cards match. And the both items are very easy. You can do it anywhere
where you want to perform it, this magic. You can do it anywhere. Okay. तो चलो हम लोग आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं और सब लोग एक बार पिगी राइट के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. Everyone, please give a big clap for Piggy Right, who are organizing this type of online magic show. Thank you, Piggy Right. Thank you, all my little participants, all my students, and all the parents who are interested to teach their children magic from Piggy Right. So thank you, all of them. We'll meet very soon or in next week, and you may continue the magic classes. If you want to join the classes, you just call the Piggy Right phone number, and you just click the link, and you can easily join in the Piggy Right classes. So thank you. We are give a bye, everyone. So everyone, please give a clap and give a magical spell. Gilly gilly, hocus pocus, abracadabra, vanish.